वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज फ़र्ज़ है, जिन पर हज फ़र्ज़, जो साहिब इस्तिताअत है उन पर हज फ़र्ज़ है। हज करना कुरान पाक की आयतों पर अमल करना है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फ़रमान आलीशान पर अमल करना है। और जिन पर हज फ़र्ज़ है उन पर मसाइल सीखना भी फ़र्ज़ है। तो हम बैठे हैं इल्म दीन की महफ़िल में, तो नियत कर लें कि अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दीन सीखूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। क्योंकि इसमें अब कुछ है जो हज पे नहीं जा रहे, वो ऐसे ही सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब लेकिन ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सिर्फ हज के लिए नहीं होगा, ये एक जर्नी होगी अल्लाह ने चाहा तो। हम इंशाअल्लाह तसव्वुर में मक्का भी जाएंगे, तसव्वुर में मीना भी जाएंगे, अरफात भी जाएंगे, मुज़दलिफ़ा भी जाएंगे, मुज़दलिफ़ा से वापस भी आएंगे, फिर हमने कंकरी भी मारनी है, फिर तवाफ़ ज़ियारत भी करना है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह तसव्वुर में हम मक्का भी करेंगे, मदीना भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इसके बाद फिर फ़ौरन महफ़िल मदीना भी है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मदीने की यादों में गुम भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी नीयत रखकर अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दीन सीखूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और थोड़ा सा इंग्लिश में भी करूँगा क्योंकि ये रिकॉर्ड होकर फिर ये अपलोड भी होगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इंग्लिश उर्दू इसको मिक्स कर लेंगे, पर मेजॉरिटी इंग्लिश में होगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल व्हाट वी विल डू इज़ वी विल अज्यूम दैट यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वाया नुसुक, but some people go via Pakistan as well, or other countries as well, if you hold another country hold a passport. So assuming that you are traveling on Hajj from Australia, so once you get on the flight, there is no direct flight to Saudi Arabia. You have to stop somewhere. So from when you get on the flight from here, you will carry a hand luggage. In your hand luggage, you have to have your ihram with you. So the entire set of ihram, this ihram, a belt and slippers. You have to have these slippers with you. The best is you wear these slippers from here, so you don't have to worry about looking after the slippers. This must be in your hand luggage. If you end up in the other country, in transiting country without this, there is no other way to get an ihram, and then when you land in Jeddah, you will have to pay a dam because you are landing without ihram. So you have to make sure this is in your hand luggage. At a minimum, 4 things. This 1 2 3 2 pieces of cloth and your slippers, because there are special type of slippers that you have to wear. Not every slipper is allowed. Okay, so this is your minimum. Now what I would do is, my hand, if I don't have a hand luggage, I would carry a bag like this. This is my hand luggage. This bag can carry easily 10 kilos. You understand? So this is your ihram bag. Why is this bag very important? I will talk to you about this in a minute. But we assume that we are traveling from Sydney or Australia, and we are going via transit to any Arabian country or any other country in the Southeast Asia, and then you fly across to Jeddah. When you fly across to Jeddah, this is your last leg, and you are now going to land into Jeddah. Before you land into Jeddah, before the miqat, you have to be in the state of ihram. Now, if you are in the Gulf states, it's approximately 3 hours. But if you transit via Singapore, Malaysia, Indonesia, or China, or anywhere else, and you travel across to Jeddah, it's 9 hours. Okay, but before you pass the miqat, the boundary which 99% of the airlines announce, because currently at the moment, if you don't hold a Hajj visa, you cannot land in Jeddah and you cannot land in Medina. You have to be a Haji to go there. If someone wants to visit someone, you can't go via Jeddah or you can't go via Medina. You have to go via Riyadh and then you come in. Okay, so you have to be a Haji. So what they do is, every airline will announce that the miqat is coming. This is approximately 1 hour before Jeddah. Before 1 hour before Jeddah, they announce that now within 20 minutes the miqat will be there. So you have to do your ihram niyat. You have to make sure you are in ihram, and everything is done. The best way is you offload all your clothes and you wear this, depending on where you are. If you are in the Gulf state, it's 3 hours. You better do everything at the airport. That way you don't have to worry about anything from there on. Okay. Now, before you land, you need, at the transiting airport, you need to pray 2 units of salah for ihram. How to pray this? Rafiqul Harmain. Rafiqul Harmain is the best book. हर चीज़ तफसील में दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप दी हुई है। आपके पूरे स्टेप प्रोसेस में कौन सी दुआ कब कहाँ पढ़नी है, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अच्छा, रफीकुल हरमैन को कम से कम 3 बार पढ़नी है। सारी दुआएं आपको बाय हार्ट याद नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी दुआएं हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी दुआ किधर लिखी हुई है।
इसका मैं एक और सोल्यूशन बता देता हूँ. When you travel with your partner, normally the husband is the guide who makes decisions and he will tell you where to go, how to go, when to reach there. The job of the wife should be to keep record of Rafiqul Harman and tell you when to recite these duas. Split your roles. One person is the guide, so he makes all the decisions and where we need to go, what time we need to be there. The job of the wife should be to remind you, अब यहाँ ये दुआ पढ़नी है, अब यहाँ ये दुआ पढ़नी है, अब हम सफ़र की दुआ में सफ़र की दुआ पढ़नी है, अब मीकात आएगा, मीकात से पहले एहराम की नियत करनी है, दुआ पढ़नी है. ये सब वाइफ का काम होना चाहिए. वो आपको याद दिलाते रहेगी, आप नियत करते रहोगे, इंशाल्लाह दुआएं पढ़ते रहोगे और इंशाल्लाह सफ़र आसानी से कट जाएगा. ये रोल्स अपने बांट लें. अब आप प्लेन में बैठ गए, एहराम न तवाफ न नफिल पढ़ ली आपने. अब एहराम की नियत नहीं करना जब तक आपकी लास्ट लेग की फ़्लाइट टेक ऑफ करके स्ट्रेट नहीं हो जाती है, सीट बेल्ट साइन बंद नहीं हो जाता, तब तक एहराम की नियत नहीं करना. वरना फ़्लाइट डिले हुई या कुछ हुआ तो आप एहराम की स्टेट में आ जाओगे. इसके बाद एहराम से बाहर निकलने के लिए भी दम देना पड़ेगा अगर आपकी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई है तो फ़्लाइट जब तक स्ट्रेट हो जाए, आधा घंटा गुजर जाए. अगर खाना प्लेन में मिलता है तो खाना भी खा लें. मैं बताता हूँ क्योंकि प्लेन में देते हैं टिश्यूज़. एक बार एहराम की नियत कर ली तो वो टिश्यू को इस्तेमाल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज़ दैट टिश्यू. और कोई बाजू वाला इस्तेमाल करता है तो उससे भी बचना है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उस पर आपको दम हो जाएगा. ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना. ये कॉमन मिस्टेक है. ये इतनी खुशबू हो जाती है, 3-4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इतनी खुशबू हो जाती है. हम है एहराम की हालत में, हम उस खुशबू को नहीं लगा सकते अगर एहराम की हालत में है तो. अगर एहराम से पहले है तो कोई इश्यू नहीं है. अब आप होंगे जिद्दा लैंड. जिद्दा लैंड होंगे तो जिद्दा लैंड होने के बाद आप इमिग्रेशन वगैरह करवाओगे. 99.99 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया से लोग जो आते हैं ये नए एयरपोर्ट पे ही लैंड होते हैं. ठीक है, you will land on the new airport, but if you're traveling from Pakistan and other countries, you will land on the old airport. But you don't have to worry about that. Your tour guide, your tour operator or Nusuk will take care of all that. But if you are traveling via Nusuk, you will 100% land on the new airport. Okay, then you collect your luggage. As soon as you come out, there will be Nusuk desk. You have to go and report there. They will check your documents, they will check your validation, they will stamp all the documents, and at this stage, I don't have news that are they giving Nusuk IDs at the airport or not. But they will take control of you. Okay, you need to make sure you keep your passport with you. Do not hand your passport to anyone because with one scan, they can find out who you are and what visas they have. They have iPads now. As soon as I scan your name, they will tell you how many Saudi visas are you carrying. It happened to me once. As soon as he scanned, he found out I'm carrying two visas. I also have a year-long visa. So straight away he found out that I have a Hajj visa and I'm also carrying a tourist visa. So he knew and he let me in because they check all this. Make sure you always have your passport. Okay. Then Nusuk will take over. They will put you in a bus, put you in a small coaster or something, or taxi or whatever. And it is their responsibility to take you to your hotel in Makkah. If you are landing in Medina, you don't have to wear ihram. Even though you're going via Jeddah or you're traveling directly, if you are landing in Medina, you are not to wear your ihram. This is only for Jeddah because you are going to Makkah. But if you are landing in Jeddah and you are going to Medina, you don't have to wear an ihram. If you're not going to Makkah, you don't have to wear an ihram. You just land and you go straight to Medina. Now they put you in the hotel. Now you will be very tired. You have traveled more than 15 hours to 20 hours traveling via 4 time zones. You have not slept for the last 24 hours on a bed. Okay? You need to go to your hotel or stay in your bus and relax. नींद आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है ये सफ़र में. ये समझ लें आप. नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है वरना लाखों रुपए या हज़ारों डॉलर का जो रिवॉर्ड बेनिफिट है ये आपको होगा नहीं. यू रिमेंबर दिस इज़ द गोल्डन रूल. यू हैव टू रिकवर योर स्लीप. जहाँ मौका मिले वहाँ सो जाना है. अगर इबादत नहीं करनी तो सो जाना है. ठीक है. बस में भी आराम करना है. होटल पहुँचे. अब उम्रे की घाय नहीं करनी. अब मैं बताता हूँ कि उम्रे की घाय क्यों नहीं करनी. अगर आप दिन में पहुँचे हैं, सुबह फजर में पहुँचे हैं, तो रेस्ट कर लें. ब्रेकफास्ट होटल में होगा, ब्रेकफास्ट कर लें. मोस्टली नुसुक में ब्रेकफास्ट और डिनर होटल में होता है. ये प्री बुक्ड होता है. आपको टाइम्स दे दी जाएंगे. यू गो देयर एंड ईट इन द होटल लॉबी. नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मेज़ानाइन फ्लोर पे,
फर्स्ट फ्लोर पे मोस्टली होटल्स की रेस्टोरेंट्स होती हैं, वहाँ पे आपके खाना होगा, खाने के टाइमिंग्स होते हैं. यू गो देयर एंड ईट, देन यू गो टू स्लीप. If you have traveled, no matter what part of the day it is, you sleep first, because here on it is very, very important that you know what you are doing and your du'as will be accepted. So you need to be fresh so you can ask all your du'as and you can pray properly. Then if it's during daytime, the best time to do umrah with a family is after Fajr, before Zohar. After that it gets very hot. So after 11 o'clock, the entire mataf is covered under sun and it gets very hot. If you can bear the heat, which is not that hot at the moment, but if you can bear the heat, this is the best time to do tawaf. It's very quick because there's no one there. People are scared of the heat and they stay away. This is the best time to do it. तवाफ ही खाली धूप में करना होता है. सही तो बिल्डिंग के अंदर होती है, उधर धूप नहीं होती है. ये आधे घंटे का ही काम होता है. ठीक है, इसके बाद आप अंदर जाके कर सकते हैं. अगर जोहर में पहुंचे हैं तो जोहर असर मिस कर देनी है आपने. बाद में असर के बाद तवाफ करना है. याद रहे, नमाजों के दरमियान अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है, इफ योर हस्बैंड एंड वाइफ आर डूइंग इट टुगेदर, you have to make sure you have a good gap between salah, because if the prayer time starts, they will separate you and your wife. There is segregation. So your wife will be sent at the back and there is no way to come back in. Okay? Because of the rush, what they do is they cut off everything, and the cut off is for next 45 minutes after the salah to spread the rush. So once you and your wife separate, there is no way for you easily to get back. So the best way is, whenever you are doing your tawaf and your umrah, you make sure that there is no prayer time in between. Even 25 minutes before the prayer time, they start to separate the mataf. So you do not end up there, because they will stop you and they will separate the husband and the wife. And once again, you can't get back in. So what you do is, if you want to do it in the morning, say from 7 o'clock to 11 o'clock, best time to do umrah. In the afternoon, if right after Asr, their Asr to Maghrib. And after Maghrib, don't worry about coming up to Isha, because you do it after 10 o'clock. Between 10 o'clock to 2 o'clock. This is one of the best times to do it, because you have enough time. In the mataf, no one can enter except they are wearing an ihram. So only people that are doing umrah can do tawaf from the mataf. Otherwise, everybody has to do it from level 1 and level 2. Okay, now you do your umrah. So you do your 7 rounds, you pray your 2 rakat nafil salah, and then you go and do your sa'i. Then you go and do your shaving of the head. Now shaving of the head, all those barber shops that were under the clock tower are all gone. They do not exist anymore. They only have one big shop. They charge you approximately 25 to 30 riyals and they do it. But make sure you use a certified barber. किसी से भी टकरा हिजामा नहीं करवाना, क्योंकि अगर ब्लेड सही नहीं है तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं. मैंने लोगों के सर फंगस में भी देखा है. गलत ब्लेड लग गई थी या ऑथोराइज्ड बाबर नहीं होते तो फिर वो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं. ठीक है, you have to go to an authorized proper barber shop. Even if they charge you 5 riyals more, your health is more important than anything else. Under the clock tower, there are authorized barbers. There's a big barber shop. They have like 250, 300 barbers over there. There's a big unit now. Before we had so many shops. Now this is all gone. There's one barber only, and there's like 250 barbers in there. It takes them 5 minutes to shave one head, and your number comes very quickly. So go there and get this done. Now, once you finished your umrah, you are out of your ihram. Once you are out of your ihram, inshallah azza wa jal, you can now go to your hotel, have rest. Now you are waiting for your Hajj days. In this time, you can do tawaf, you can do umrah, but I would suggest not to do any more umrahs, because don't be tired. Before you land from Nusuk, you will only have 3, 4, 5 days before you go for Hajj. 4-5 दिन पहले ही पहुँचोगे आप, तो बड़ी मुश्किल से एक आधा उम्रा हो सकता है. उम्रा हम बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल तवाफ़ कर लो और रिवाइज़ करना है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है, ज़िक्र अस्कार करना है, तवाफ़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हज के मसाइल रिवाइज़ करना है. ठीक है, अब हज की रात यानी कल सुबह मीना जाना है. तो अब आप आज उस रात को क्या करेंगे? आप उस रात को सबसे पहले ये बैग बनाएंगे. आप इसको कहते हैं हज बैग. अच्छा, अब लोग आपको बड़े बड़ी बैग्स
बड़े बड़े झोले, सूटकेस, व्हीलचेयर वाले, नो, nothing means nothing. This is all you carry with you to Mina. This is more than enough. Why? I will tell you in a minute. This bag has got this water bottle section. This bag, अच्छा, why red? क्योंकि 90% बैग्स लोग ब्लू होती है या ब्लैक होती है. हमने वो कलर लेना है जो कोई नहीं लेता. दूर से भी हमारी बैग दिखेगी. ठीक है. हमारी फैमिली जो हमारे फॉलो कर रही है उनको भी पता चल जाएगा कि मेरे शौहर के पास रेड बैग है या ग्रे बैग है या वायोलेट बैग है, डिफरेंट कलर, समथिंग डिफरेंट, डार्क वाइट, लाइट ब्लू, बिकॉज पीपल डोंट कैरी दीज कलर्स. आई लव रेड बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड that if we know where, no matter where in the tent my bag is, I can see my bag is there, because nobody else is carrying red, everybody is in white, and this color stands out. You understand? That's the reason why this is red, and this is one of the reasons why this is red. Second thing, this thing is very, very important. Bags are not allowed in haram. What you do is you wear this. See this is according, I bought this recently, so this is how you wear this. Your mobile, your counter, your tawaf tasbih, your Rafiqul Harmain comes inside, all sizes, the pocket size and the one big, they both come in there. Plastic bags for chappal, every, see this, I've got a back over here. This is a plastic bags for slippers. Okay, then I have this for my nusuk card, for my hotel card, for money, and this has a chain. In the front here, I have got for my mobile phone, there's another chain inside. There is another chain inside, so I can lock my mobile phone. Somebody has to go inside. And second thing is, if somebody tries to cut, he has to cut through 3 layers, because there's a layer in the front, then is this one, then is my mobile phone. So he has to cut through 3 layers. So nobody can just walk around you and cut something and take something off. You can't get to your mobile phone. Even from the front, he has to cut through 3 or 4 layers. Nobody does all this at the moment, but still, we have to be cautious. Okay? Anyway, Amazon, anywhere, Kmart, anywhere. But you have to buy this one, which has 3 or 4 compartments. Okay? And this bag will come on the right side, because during Ihram. Regardless, that is afterwards. Right side, right shoulder. I will tell you in a minute. So just listen to what I have to say, because if you break my rhythm, then I lose control. I lose the track as well. Inshallah, I will answer all your questions. Okay? Then you wear this. You have this with you. So every time you go to haram, you should have this with you. You don't have to carry anything else. Now, when you on that night, you have to have the belt. You should always carry 2 belts. Now I've got both of them. They both are different. They both have different locks. This one, common lock. Okay, old style, old school. This one is a new variety at the moment. I purchased it this year, or probably, yes, this year. This has a double lock. So there's a lock here and there's a lock here. ये ऐसे खुलेगा भी नहीं, ये देखो नहीं खुलेगा. इसको खोलने के लिए यहाँ से दबा के यहाँ से खोलना पड़ेगा. खुदा ना खास्ता अगर एक लॉक फेल हो गया तो दूसरा लॉक आपके एहराम को बांध के रखेगा. लेकिन मैं एहराम बांधने ऐसा सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह जैसे ही एहराम लूज़ हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा मेरा एहराम लूज़ हो गया है. आपका एहराम गिरेगा नहीं, गिरने से पहले ही आप पकड़ लोगे उसको. ठीक है, इंशाल्लाह. 2 बेल्ट. ये मीना की बैग भर रहे हैं हम, कल सुबह मीना जाना है. मेडिसिन, पावर बैंक, 20,000 के जो 20,000 पावर बैंक आती है वो लेके जानी है. 2 वायर लेके जाने हैं. वो वायर चार्जिंग के लिए मिलता नहीं है. फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है. हस्बैंड के पास भी फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, वाइफ के पास भी फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है. खुदा ना खास्ता अगर आगे पीछे हो गए तो फ़ोन से कनेक्शन हो सकता है. दोनों के पास एक पावर बैंक होनी चाहिए, बड़ी 20,000 वाली. वाई? बिकॉज नॉर्मल फोन्स 3 to 4 times you can charge your phone. Okay, so you have a safety net. You need 2 of these. Now, in terms of ihram, I prefer personally towel ihrams. Why? Because it is heavier a little bit. So when you wash, when you do your wudu and your ihram gets wet, it does not get transparent. But even if you use a cloth one, the cloth one is thick enough. What I do is I carry 1 set of cloth and 1 set of towel. Okay, the towel is a new one. This is like a Turkish towel one, which is soft, thin, but thick at the same time. Okay, and long.
एहराम पहले से ही आपने मेजर कर लेना है, एहराम इधर ही धो लेना है। जो स्टार्च लगा हुआ एहराम है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो स्टार्च वाला एहराम है ये नहीं लेके जाना, घर से धो के लेके जाना, इसको इस्त्री करके घर से धो के लेके जाना। अब ये देखो, ये एहराम मैंने पहले से ही मेजर किया हुआ है, ये इतना बड़ा है, ये इस्तेमाल शुदा एहराम है, ये देखो दाग भी लगे हुए हैं सब, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, टॉवल भी चेक कर लीजिएगा, ये मेरा चेक किया हुआ है, ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैंने अभी आपको नहीं बताया, पर ये सब चेक होना चाहिए पूरा सेट, एक टॉवल का सेट और एक कपड़े का सेट। एक सेट आप पहन के जाओगे, यू विल वेयर वन सेट टू मीना एंड यू विल कैरी अ स्पेयर। व्हाट आई नॉर्मली डू इज ऑन द बॉटम आई वेयर अ टॉवल, on the top I wear a cloth. You can do either way, vice versa, or you can wear both together and keep the other one as spare, or you can carry both cloth ones or both towel ones, whatever you want, however you want, as far as you've got an ihram that is checked, everything is fine. Okay, then slippers. Okay, slippers only carry one. If something happens to your slippers, then you get slippers in Mina. You get stalls, you get slippers in Mina. But when slippers, I want to tell you one thing. There is a reason why the slipper is this color. Everyone wears either white with blue or white with green. This is a common color you get. I have chosen this color because this will be separate from everyone. Secondly, see these marks, these designs, they are anti-slip designs. So when you do your wudu or you go to the toilet, when your legs are wet, this will not slip. Okay, same thing with here, this will not slip. So you make sure you get good quality chappals and you take at least 2 or 3 with you in the luggage, because if you lose it, then you have to buy a low quality one or buy something from there, which is also fine, absolutely no problem, but carry something that you have already used, but carry a different color. Don't use black, don't use white, use a color that nobody normally prefers. So brown, red, dark blue also is a very common color, light blue, something of that sort. Okay, there's a reason why this is this way, but make sure you get anti-slippery ones. You get this over here as well. Big brands, they all have anti-slippery, but they have to be like this, because your top part of your feet has to be exposed, has to be open. Okay, so this is chappal. Medicine, make sure you carry your medicine. That is why I have got this. Money, cash, everything has to be in there. See this, there's a bag, there's a compartment underneath. This is where my money goes. This is where, do not carry your passport. Do not carry your passport. You are on a journey. Don't carry your passports. Your nusuk card is more than enough. Okay, so what you do is you put all that in there. Your nusuk card has to be around your neck all the time, because you will need that. They will check, and every time they will, if you don't have a nusuk card, they will ask you, where is your nusuk card? So have your nusuk card on your neck, around your neck. They give you a lanyard. Okay, then you put this in here, you put your money in there, you put all your documents in there, put your medicine in the front. Okay, carry a miswak, very very important. You can't use a toothpaste. Carry a toothbrush. Use a toothbrush without the toothpaste, to make sure your mouth is clean, your mouth is fresh. You can't use a toothpaste, so you need to carry a miswak. If you don't like miswak, carry a toothbrush. Use your toothbrush to brush your teeth, remove all the germs. Okay, then you have this bag ready. Now this is the night of Mina. Now normally nusuk people will give you a timetable, because they have to carry so many of them. The bus starts to do rounds from 9 o'clock at night. Tomorrow the 5 days of Hajj start. But if you go through a private operator, which is India Pakistan, they take you the next day in the morning. But if it's nusuk, they will give you a timetable. When they give you a timetable, you be there, okay, and report to your team leader, and they will take you in a bus and they will take you to Mina. They will allocate a camp to you. You go there and sleep. In the morning when you pray Fajr, you will find out that when you've arrived in Mina, very different city, very quiet, very peace, there's no one there. In the morning at 7 o'clock in the morning, that will be full.
because all those 3-4 million people or 2-3 million people that are about to do Hajj are all in the same spot at the same time. Okay, so they are all there. Now comes the big journey. So now you have to pray a nafil salah at night or in the morning, whenever before you go. You wear your Hajj ihram if you are doing tamattu. You wear your Hajj ihram, you make your intentions. Now you are in the state of ihrams, and Rafiqul Harmain, there are some do's and there are some don'ts. You need to read all that. कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ihram की हालत में हैं हम. खुशबू से तो दूर रहना है. हमारी बैग में, इस बैग में खुशबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, वरना अगर आपका हाथ पड़ गया तो फिर दम हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद आप ये बैग, अच्छा खाने पीने के लिए टेक सम लिटिल बिट बिस्किट्स. डोंट कैरी टू मच चेवर, वेफड़ा, नमकीन, दिस एंड दैट. You will get plenty food. If you're traveling via Nusuk, it's normally B Moldim. Nusuk doesn't have C and D, so you will get plenty food in time. You will get drinks, you will get fruit, you will get everything. You will get more food that you should eat. Not you can eat, you should eat. Don't worry, we are not there to eat. ये 5 दिन जो है ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है. खाना पीना हम आके कर लेंगे, वहाँ जो काम करने के लिए गए हैं वही करना है. इतना खाना नहीं खाना है. फ्रूट, ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं पीना है. ठीक है. नो ड्रिंक्स एट ऑल, नो कोल्ड वाटर एट ऑल. मक्का में जब रह रहे हैं आप, you will not drink cold zamzam at all. This zamzam is not cold by putting ice. It is done by nitrogen. It's very cold. You will have sore throats, and then there is no cure to this after that, because you are always traveling and there's population, there's pollution, there's everything. So you do not eat, do not drink anything cold. No ice cream at all. I'm very open about this. No ice cream. We will eat ice cream after Hajj, inshallah. Not now. Now is the time to perform. Normal water. If they are only giving you cold water, leave it outside for 20 minutes and then drink that water. But don't consume anything cold. On that day, you have your breakfast. They give you breakfast, you have your breakfast. You relax. If you feel like sleeping, this is the first day of Hajj in Mina. Okay? You relax, go to sleep. You feel like sleeping, go to sleep. You feel like reading, you go read. Okay? Now, then what happens is, the next most important part is toilets. We are used to personal toilets. In this country, every person has their own individual toilets. We live in 4-bedroom, 5-bedroom houses. The family members also don't share toilets. Over there, hundreds and thousands will be sharing the same toilet. And there's a queue. I'll give you a tip. Inshallah, this will work. There's toilets inside your tent every 50 meters, 30 meters, 40 meters. You can use that, but every cubicle will have a line of 10 people. So what you do is, you do location settings. Where is your tent? And you go outside the tent on both sides, wherever there is a road. Okay? You go outside. Toilets are also located outside. Every 20-30 meters, there's a big block of toilets and wudu. You go there, there will be no one. Why? Because everybody's inside. Those are empty. This happened to me once. Inside, every cubicle has 15 people, time of Dhuhr. So I just turned around, asked someone, where is the exit? He showed me that the exit point. I located my tent. So there's poles, and poles have numbers on the top. You just remember that number. From here, this is where my tent is. You go out, and as soon as you go out, you will find these big blocks of building, blue in color or something of that sort. Those are all toilets and wudu places. You go there, neat, clean, there is no one there, because everybody is inside the tent and too scared to come out. You go out there, you do your wudu, you do whatever you need to do, have your comfort stop, come back in the same way, go back to your tent, pray, and do whatever you wish. This is one trick of trade. Second thing is, you do, if you can wait, you wait after the time of Salah. So normally people pray over there at 12 o'clock. So if you can wait, you go to toilet at 1 o'clock.
When everybody has finished and they are busy praying, you go to the toilet and you will find a spot easily. Okay? Now, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. You pray in Mina, in your tent. Read Rafiqul Haramain. Spend your time reading Rafiqul Haramain, all the du'as. The most important part of your Hajj is the next day. दूसरे दिन अरफात, यौम अरफात है. जो सारे हज़ारों डॉलर खर्चा किया है ना आपने, और सारी तकलीफ़ें उठाई हैं ट्रैवल करने की वगैरह वगैरह, ये सब जो असल है ना इस सब चीज़ की, वो दूसरे दिन है, वो है यौम अरफा. ठीक है. अब आपको टूर वाले यौम अरफा के दिन आपको बस में बिठाकर आपको अरफात लेके जाएंगे. मीना और अरफात में तकरीबन 14 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. ये बसेस राउंड वो कर रहे हो तो लाइन लगती है. अगर लाइन लगी हुई है तो आप लाइन में नहीं खड़े रहना, आप अपने टेंट में जाके आराम करना. ये लाइन को 2 घंटे लगेंगे. सुबह 6 बजे को कहा है आपको, 6 बजे से हम ले जाएंगे आपको, तो आप 6 बजे से जाके नहीं बैठना, आप अपने टेंट में आराम करना. इसकी लाइन ख़त्म होते होते 2-3 घंटे लग जाएंगे. आपने जाना है 2 घंटे के बाद. इसमें हम क्या करते थे, हम हर घंटे में जाके चेक करते थे कि लाइन की पोजीशन क्या है. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है, मैं आगे बताता हूँ. चलिए मैं इसको आगे बताता हूँ. आपने फिक्र नहीं करनी, आपने अपने टेंट में ही बैठना है. हर 1 घंटे से आपको जाके चेक करना है लाइन कितनी बड़ी है. आपको लगा लाइन बहुत बड़ी थी, अभी भी बड़ी है. कुछ 3-4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं इनको सब लोगों को घुमाने में, ट्रैवल कराने में. ठीक है. आपने अपने टेंट में रहना है. आप जब अरफात पहुंचोगे तो ये आपको ले जाएंगे, बस जहां उतारेगी वहां से टूर गाइड आएगा, आपको आपके खेमे तक ले जाएगा, आपको खेमे पे ले जाएगा. अरफात में जाके सो जाना है. ठीक है. ब्रेकफास्ट मीना में करना है. अरफात वाले दिन आपको अरफात ले जाएंगे, ये तकरीबन 10-11 बज जाएंगे. अब जगह ढूंढकर आपने सो जाना है. बेडिंग होगी, पूरे अरफात के खेमे में बेड लगा देते हैं ये लोग, और सब सोए होंगे, आप भी सो जाना. अरफात का जो वक्त है वकूफ़ अरफात, ये ज़ोहर के बाद से है. तो हमने 12 बजे, तकरीबन 12 बजे उठना है, बाथरूम वगैरह जाना है, वो ताज़ा वज़ू वगैरह करना है, मिसवाक वगैरह करना है. और अब ज़ोहर का वक्त हो गया, आपका वकूफ़ अरफात हो गया, आप हज के एहराम से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हाजी हो गए. ठीक है. आपने एहराम की नीयत से, आपने एहराम पहना, हज की नीयत से आपने एहराम पहना है, और अब ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया, आप अरफात के मैदान में हैं, अल्लाह की अता से आप हाजी हो गए. अब ज़ोहर से लेकर मगरिब तक एक ही काम करना है. फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ दुआ दुआ. एक लिस्ट बना लो, क्या चाहिए, क्या मांगना है, किसको क्या चाहिए, किसके लिए क्या मांगना है. ये पूरी एक मोबाइल के अंदर लिस्ट बना लो. बहन के लिए ये मांगना है, भाई के लिए ये मांगना है, बीवी के लिए ये मांगना है, बच्चों के लिए ये मांगना है, वालिदैन के लिए ये मांगना है, घर वालों के लिए ये मांगना है, पड़ोसी के लिए ये मांगना है, वो मुसलमान दोस्त है मेरा उसके लिए ये मांगना है. पूरी लिस्ट. अब एक कोना ढूंढ लो. खेमे के अंदर बहुत गर्म होता है. ठीक है. खेमा बंद होता है, खेमे में बहुत गर्म होता है. इट्स वेरी हॉट इनसाइड एंड वेरी डार्क एज वेल. They don't have too much light. You come outside, find a tree or find a branch, find a shade and sit on the ground. Put a mat on. ठीक है. मैट भी देते हैं वो लोग. ठीक है. मैट ले लो या कंबल बिछा लो और ज़मीन पर बैठ जाओ और इबादत करो. ज़िक्र व अस्कार, कुरान पाक की तिलावत, दरूद पाक की कसरत, और मेन जो इबादत है उस दिन, दैट इज़ दुआ 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 दुआ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट आवर्स इन दुआ, आवर्स. मशहूर वाक़या है कि इतना कि उम्मुल मुमिनीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में बिजी थे. तकरीबन 3-4 शाम का वक्त, असर का वक्त होगा. ठीक है. और उम्मुल मुमिनीन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट उम्मुल मुमिनीन, everybody thought Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is fasting. He didn't eat and drink anything at that time. Everybody thought that he's fasting. So Ummul Mu'minin knew about this. She realized. So what she did was, she gave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cup of milk or a cup of drink, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam consumed it. तो सहाबा को पता चल गया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से नहीं है. अरफात के दिन रोज़ा, हाजी रोज़ा नहीं रखते. ठीक है. नहीं रखना चाहिए. अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन वो ड्रिंक पिया, जिससे सहाबा को पता चल गया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से नहीं है, ही इज़ नॉट फास्टिंग. सो दे ऑल ऑल्सो ड्रैंक. ओके. एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बिजी इन दुआ. जैसे असर का वक्त शुरू हो जाता है, धूप कम हो जाती है, दुआ मांगना और आसान हो जाता है.
अब इधर दोबारा ठंडा पानी नहीं पीना, खाना ज़्यादा नहीं खाना, प्लेन अगर राइस मिल जाए, फ्रूट मिल जाए और दीगर चीज़ें मिल जाएं, बिस्किट, नमकीन, हर वो चीज़ जो पेट में जाके ना वो करे, प्रॉब्लम करे, वो नहीं खानी। लोग बहुत कुछ खाने को दे रहे होंगे, आपने नहीं खाना है। आपको जो फूड दिया जाए मौलम की तरफ से वो भी इतना कंज्यूम करें जितना आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स ले जाएं, इलेक्ट्रोलाइट पिल्स आती हैं, इलेक्ट्रोलाइट वाटर आता है जो यहाँ से इसकी पिल्स वगैरह मिलती हैं, जो कैप्सूल्स वगैरह मिलती हैं, वो ले जाएं। उसको सादे पानी में डाल के अगर वो कंज्यूम करना चाहे तो वो कंज्यूम करें। असर से पहले दोबारा वज़ू कर लें, इस्तिंजाफारी वगैरह हो जाए, दोबारा वज़ू कर लें, फिर दुआ करें। अब मगरिब का वक्त हो जाएगा। ये सारा जो है ना ये नुसुक वालों के लिए, प्राइवेट ऑपरेटर्स की अपनी प्राइवेट बसेज होती हैं। अब असर का वक्त हो जाएगा, दुआ 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 दुआ, ठीक है। हर वाइफ है तो वाइफ को भी साथ में ले लें, अब दोनों मिल के दुआ करें। अब हो गया गरूब आफ्ताब, सन सेट हो गया। अब लगेगी दोबारा लाइन। अब यहाँ से निकल के हमने जाना है मुज़दलिफ़ा। तो अभी जितने जो 10-15 हज़ार जो आपके ग्रुप में हैं, ये सब लाइन में लगेंगे दोबारा बस में बैठने के लिए। आपने लाइन में नहीं लगना है, आप अपने खेमे में बैठ रहे हैं। अब ठंडा हो जाएगा खेमा, ये सब चले गए, एयर कंडीशन फुल स्पीड में काम कर रहे होंगे। अब आपने आराम करना है। वही सिस्टम हर 1 घंटे में जाके लाइन से पहले तो देखें लाइन है किधर, ठीक है। इसके बाद लाइन है कितनी बड़ी, बहुत बड़ी लाइन होगी। अब इधर एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ था कि मेरे साथ बहुत सारे इस्लामी भाई थे। अब कुछ थे जो दूसरे खेमे में थे। दे ऑल केम, व्हाट डू वी डू? आई सेड वी आर नॉट गोइंग एनीवे, वी आर गोइंग टू स्लीप आफ्टर अराफात। व्हेन द डे फिनिश्ड, I said to them, we are going to sleep. We are not standing in any line. Oh, no, 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 no. Okay, they stood in the line. So they stood in the line from 7 o'clock in the evening. Okay, we all went to sleep. हम कंबल ओढ़ गए, सो गए सब, कोई नहीं था खेमे में। हमारे जो मेरे साथ कुछ 15-17 इस्लामी भाई थे, या 20 से ज़्यादा थे, और कुछ और आ गए। हम सब सो गए, 2.5 घंटा, 2.25 घंटा सो गए हम सब। फिर उठे तो जो इस्लामी भाई लाइन में खड़े थे ना, वो अभी भी लाइन में खड़े हैं। हम सो के उठे हैं अभी 2.5 घंटा, हम फ्रेश। उनको 10 बजे नंबर आया उनका रात को। हमने डिनर भी कर लिया, उधर ही चाय मिल रही थी, चाय कॉफ़ी वगैरह सब पी ली, वज़ू किया, मिसवाक की, वज़ू किया, फ्रेश हो गए। पानी, अच्छा यहाँ पे पानी भरना बहुत ज़रूरी है। ये बैग के अंदर कम से कम 1, 2 और कम से कम 4 to 5 बॉटल्स ऑफ वाटर। मुज़दलिफ़ा में पानी नहीं मिलेगा, ये पानी सारी रात चलाना है। ओके, लास्ट इसकी भी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। ये ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अब उनको हमने पानी वगैरह भर लिया। हम लाइन में खड़े हुए 10:45 को, हमारा नंबर आया 11 o'clock को, विदिन 15 मिनट्स। हम खड़े थे, 2 बस लोड आगे थी, हमारा 2 बस के बाद हमारा तीसरे बस में हमारा नंबर आ गया। हम मुज़दलिफ़ा पहुँचे, 25 मिनट्स में हम मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। जहाँ उतारना था हमें उतार दिया उन्होंने, और गेट खोल के हमें अंदर भेज दिया मुज़दलिफ़ा केस में। अब वहाँ पे टॉयलेट की लाइन। हम फ्रेश होके आए हैं, हम वज़ू करके आए हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे मगरिब और ईशा पढ़नी है। पहले मगरिब पढ़ेंगे, फिर मगरिब की 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, इसके बाद ईशा के 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर मगरिब की सारी सुन्नतें पढ़ेंगे, इसके बाद ईशा की सारी सुन्नतें और वितर पढ़ेंगे। ये मुज़दलिफ़ा में होगा। असर और ज़ोहर हम अरफात में पढ़ के आए हैं। आपने पैनिक नहीं करना, आपको छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये सबको ढूंढते हैं, फिर पूरे खेमे में ये चक्कर लगाते हैं, मौलवी भेजते हैं, कोई रह तो नहीं गया। इनके ग्रुप वालों को ट्रांसपोर्ट करना ये इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपने पैनिक नहीं करना, आपने टच में रहना है, गाफिल भी नहीं होना, पर आपने पैनिक नहीं करना, लाइन में नहीं खड़े, कोई भी लाइन में नहीं खड़े रहना, ठीक है। अब हम पहुंच गए अरफा, हम पहुंच गए मुज़दलिफ़ा। हम पहुंचे, हमने नमाज़ें अदा की हैं, कंकरियां जमा की हैं। कंकरी कैसे जमा करोगे? जो पानी की बोतल होगी ना, वो पानी की बोतल पास कर दो ना प्लीज़। अब कंकरी के लिए भी बैग्स, ये वो, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास पानी की बोतल होगी, ये खाली बोतल है, अज्यूम करें खाली बोतल है, ठीक है। इसमें आपने कंकरियां भर लेनी है। कंकरियां जो होनी चाहिए ना, कंकरी की साइज़ क्या होगी? चने के बराबर, ये साइज़, बहुत बड़ी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं। आपने रफ़ीकुल हरमैन में कंकरियां लिखी हुई 72 कंकरियां जमा करके बोतल में भर लेनी है। थोड़ा सा पानी डालें उसमें, या अभी नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप मीना जाके भी कर सकते हैं। ये बोतल में आप भर लें और ये बोतल को अपनी बैग में भर लें। 72 आपकी, 72 आपके
वाइफ की, दोनों अपनी अपनी कंकरियां अलग रखेंगे, एक साथ नहीं रखना। अगर एक घूम गई तो दोनों घूम जाएगी। मेरा सजेशन है एक 10-15 कंकरियां एक्स्ट्रा ही ले लें। अगर आपको काम नहीं आई उनको काम आएगी, अगर उनको काम नहीं आई तो फिर किसी और को काम आएगी, क्योंकि लोगों की घूम जाती हैं, गिर जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब इसको बॉटल में भर लें, बैग में रख लें। इसको बैग में कहाँ रखेंगे आप? अंदर रखेंगे। ये कंकरियाँ जो है, जो जिसकी कोई कीमत नहीं थी, अब ये आपके लिए और मेरे लिए गोल्ड है, क्योंकि हमारे 3 अरकान इसमें होने हैं, ठीक है। अब आप पहुँचे, अब अभी आपने सो जाना है, फिर 2-2.5 घंटा सो जाना है। अगर ज़ै नसीब आप अरफात में सो के आए हैं तो फिर आसान हो जाएगा सोना भी, क्योंकि आप थोड़ी नींद पूरी करके आए हैं। अब आप नमाज़ें वगैरह पढ़ के सो जाएंगे। अब आपने उठना है सुबह 3 बजे। अगर फजर 4-4:30 बजे की है तो फजर से कम 1.5 घंटे पहले उठना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट उठेंगे तो फिर टॉयलेट में फिर लाइन होगी 2 घंटे की, तो जो इबादत का वक्त है वो छूट जाएगा। अब तहज्जुद का वक्त है, क्योंकि आप ईशा पढ़ के सोए हैं, अब आप उठोगे तो तहज्जुद होगी। तो कम से कम फजर की अजान से, फजर का वक्त शुरू होने से कम 1.5 घंटे पहले उठना है। आधा घंटा आपको बाथरूम वगैरह जाने में, वुज़ू वगैरह करने में लगेगा। वापस आओगे तो आपको तहज्जुद मिल जाएगी। तहज्जुद पढ़कर आपने दुआ करनी है। अब फजर का वक्त शुरू हो जाएगा। फजर के वक्त में याद रखिएगा कि जो प्रेयर टाइम ऐप है, इसी को फॉलो करना है, दुनिया को फॉलो नहीं करना। लोग नमाज़ों से वक्त के पहले ही अजानें दे रहे होते हैं। आपने एहतियातन जो वक्त प्रेयर टाइम ऐप में है या जो लोकल ऐप्स है वहाँ के, उसके टाइम से 2-3 मिनट बाद ही फजर की नमाज़ पढ़नी है। फजर की नमाज़ पढ़ लोगे तो मुज़दलिफ़ा के अंदर तो आपका वुकूफ़ मुज़दलिफ़ा भी हो जाएगा। द टाइम इज़ आफ्टर फजर, बिफोर सनराइज। ओके, अब दुआ का वक्त है। अब फिर लाइन में लगना है। तो लाइन में लगना है तो आप पहले दुआ मांग लें, इसके बाद अब लाइन में खड़े हैं तभी भी दुआ करें। अब डिले नहीं करना, अब लाइन में पहले लगना है। सारी बाकी सारी लाइनों में लास्ट में जाना है। अब ये लाइन में जब भी मौका मिले तभी जाना है। ये एक वाहिद लाइन है जिसमें हमने पहले जाना है। क्यों? क्योंकि हमने मीना जल्दी पहुंचना है, ठीक है। अब आपका नंबर लगेगा, 2-2.5 घंटे लगेंगे इसमें भी। अब बस में बैठकर आपको ये मीना छोड़ देंगे जमरात के पास। अब लास्ट ईयर ये हुआ था कि इन्होंने सारे मीना के गेट बंद कर दिए थे। हम जब मीना पहुंचे थे तो मीना के सब गेट बंद थे। यू कैन नॉट गो बैक टू योर टेंट्स। इसीलिए, अच्छा, किसी की मेडिसिन रह गई है, किसी का सामान रह गया है, किसी का कुछ रह गया है, किसी का कुछ रह गया है, सब मीना में रह गया। आप मीना से टेंट के बाहर हो, इसीलिए ये सिर्फ सारा सामान एक ही बैग में होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ नहीं था मीना में छोड़ने के लिए। मैं मीना के कोई भी टेंट में जाकर सो सकता हूं, बिकॉज आई हैड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। आई हैड नो कनेक्शन टू माई प्लेस, ठीक है। मेरे मोहल्लिम के कोई भी टेंट में जाके मैं सो सकता हूं। क्यों? क्योंकि सारा सामान मेरे पास इधर है, मेरे पास पीछे लगेज में कुछ भी नहीं था। अब टेंट, लोगों को घबराहट, मेरा ये रह गया है, मेरा वो रह गया, हमारा कुछ भी नहीं था, हमारे पास जो था सब हमारे पास ही था। तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। उन्होंने कहा यू कांट एंटर योर टेंट्स आर ऑल लॉक्ड। ओके, व्हाट डू वी नीड टू डू? बोले गो टुवर्ड्स जमरात, एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स जमरात। अभी ये मंजर है, एक ऐसा लगेगा कयामत बर्पा हो गई है। सब सफ़ेद कपड़े पहन के एक ही जानिब जा रहे हैं। हमने ऊपर से, मेरे को याद है आज भी वो मंजर देखे थे, हम ऊपर से खड़े रह के मंजर देखे थे, ऐसा लगता है कयामत बर्पा हो गई है। जुग दर जुग मुसलमान सब मैदान महशर की तरफ जा रहे हैं। सबका डायरेक्शन एक ही है, सबका फोकस एक ही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। यही तस्बीहां चल रही होंगी और सब, अच्छा इधर नहीं है, हाँ सॉरी, इसके बाद जमरात, इसके बाद एक ही जमरात पे मारना है। पहले दिन पे एक ही जमरात पे मारना है, बाकी सब जमरात बंद होंगे। अभी मैं छोटा बड़ा आपको समझाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उधर जाओगे ना, सब जमरात बंद होंगे, एक ही जमरात खुला होगा, उसी पे कंकरी मारनी है। अच्छा, जमरात कैसा है? ओवल शेप है, ठीक है, ओवल शेप है जमरात। लोग जब इधर से आ रहे हैं, ये अगर ये जमरात है, इधर से भी मार सकते हैं कंकरी, इधर से मार सकते हैं, और लोग ऐसा आते हैं। लोग मेजॉरिटी क्या करते हैं? स्टार्टिंग में मारने की कोशिश करते हैं। आपने स्टार्टिंग में नहीं मारना, आपने घूम के आना है एंड में। यहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि सारे लोग यहाँ फाइटिंग कर रहे होते हैं, या तो यहाँ से फाइटिंग करते हैं या तो यहाँ से फाइटिंग करते हैं। आपने क्या करना है? अपनी वाइफ को लेकर घूम के जाना है और ऐसा आना है। इतना करीब से मारेंगे आप कि बिल्कुल जमरा, अच्छा लोग दूर से निशाना लगा रहे होते हैं, इतना स्ट्रेस नहीं लेना।
इतना स्ट्रेस नहीं लेना, आपने घूम के आना है। आप जमरात के बॉर्डर पे होगा, अच्छा इतना ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं है, उस बाउल में कंकरी गिरा दी आपने, ये जमरात को लग जाएगी। ये डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है, वो इतना निशाना मारने की जरूरत नहीं। अगर दूर से मारोगे और नहीं पहुंची अंदर तो आपकी कंकरी होगी नहीं, 7 कंकरियां मारनी है। तो आप घूम के जाएं, पीछे के हिस्से में जाएं, पैनिक नहीं करें कि अब मेरा छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। आराम से जाएं, घूम के बाहर से जाएं ताकि वो रश में आप नहीं फंसे। और उसके बाद फिर जब आप करीब जाएंगे तो मेक श्योर करना कि आप अपने आप को संभालें, क्योंकि पीछे से कंकरी आती है और जब कंकरी लगती है ना तो बहुत जोर से लगती है, ठीक है, क्योंकि लोग ताकत से लगा रहे होते हैं, जो खींच के मारते हैं लोग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट यू डू इज यू गो क्लोजर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, काउंट। ये 7 पहले ही निकाल देनी है। करीब जाके आराम से, इत्मीनान से, एकदम सुकून के साथ, रिक्कत के साथ आपने कंकरी मारनी है। फिर घूम के दुआ करनी है। ये रफ़ीकुल हरम में तरीका लिखा हुआ है किस तरफ मुड़ना है, किबले की तरफ मुड़ना है, दुआ करनी है और आप आगे चले जाओगे। अब यहाँ से जर्नी है चलने की, ठीक है, यहाँ से जर्नी है चलने की। आपको ये ब्रिज से उतार कर आपको ये अजीज़िया में मोड़ देंगे। दिस इज़ अ वॉक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 किलोमीटर्स। आप 5 से 6 किलोमीटर चल के आए हैं, आगे का मज़ीद जो रास्ता है वो 5 और 6 किलोमीटर और है मिनिमम। वो ब्रिज ही इतना बड़ा है, उसके बाद वो गैप में से निकलना होता है अजीज़िया की तरफ, और फिर वहाँ से निकल के आप अपनी होटल पे जाओगे। Remember this is a journey of approximately 1 hour to 1 hour 15 minutes just in walking one way। कंकरी मारने के बाद भी, कंकरी मारने से पहले आप 1 घंटा चल के आए, कंकरी मारने के बाद 1 से सवा घंटा चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अपने होटल पहुँचोगे। कुर्बानी अगर आपने टूर से बुक करवाई है, नुसुक से बुक करवाई है, तो वो कुर्बानी करेंगे, आपको कंफर्मेशन देंगे कुर्बानी हो गई है। आपके प्राइवेट ऑपरेटर से आपने करवाई है तो आपका प्राइवेट ऑपरेटर आपको बता देगा कुर्बानी हुई है नहीं हुई है। अगर कुर्बानी नहीं हुई है, डोंट पैनिक, सो जाए। आप थक के आए हैं, अभी आपने 15-17 किलोमीटर चल के आए हैं, सो जाए, ठीक है, सो जाए, नाश्ता कर लें, सो जाए। सोने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा दोपहर तक भी कुर्बानी हो गई है। कुर्बानी हो जाएगी, आप हल्क करवा लें, ठीक है। हल्क करवाने के बाद फिर आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तवाफ़ ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। अब याद रखें कि यहाँ से आपको कोई ऑपरेटर बस ट्रैवल नहीं देगा। यू हैव टू ट्रैवल ऑन योर ओन अकॉर्ड। अगर आप मक्का जाते हैं, अगर आपकी मक्का में होटल है तो आप अपनी होटल में होंगे, ठीक है। तो मक्के में होटल है तो आप अपने होटल से उतर कर तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे। 99% नुसुक में जो है वो A-B कैटेगरी वाले हैं, ये सब मक्के में है, वॉकिंग डिस्टेंस में इनकी होटलें होगी। आप आके तवाफ़ ज़ियारत वगैरह कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत वगैरह कर लें, इसके बाद फिर सई भी कर लें, तवाफ़ भी कर लें, सई भी कर लें। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश हैं, आपको लगता है कि मैं आ गया हूँ, मैंने सोया है, आई एम ओके, आई कैन डू इट, आप अपने कुर्बानी से पहले कुर्बानी का इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी होटल मक्के में ही है और मक्का बिल्कुल हरम बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो आप तवाफ़ ज़ियारत दिन में भी कर सकते हैं कुर्बानी से पहले। तो एहराम होगा आपका, उसमें भी आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, ठीक है। कुर्बानी हो जाएगी, इसके बाद आप एहराम उतार सकते हैं। हलक करवा लिया आपने, इसके बाद आप एहराम उतार सकते हैं। हलक नहीं करवा, जब तक कुर्बानी नहीं होगी हलक नहीं होगा, हलक नहीं होगा तो एहराम नहीं उतार सकते। पर इस एहराम की हालत में अगर आपके पास वक्त है और थकान नहीं लगी है तो आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। मैंने कई बार किया है, बहुत ईजी होता है, सुबह सुबह इतने लोग नहीं होते, इसके बाद ज़ोहर असर के बाद वो पैक हो जाता है, बिल्कुल पैक। तो कई बार मैंने किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी का इंतज़ार कर रहे थे। एक बार कुर्बानी हमारे रात दोपहर में 2 बजे हुई, but we were fresh, so what we did was we were staying in the clock tower, so what we did tawaf, sa'i, we went home, we went to our room and went to sleep. We woke up at 2 o'clock, तो मैसेज आ गया था जो कुर्बानी इज डन। नीचे उतरे हम, हलक करवाया, शावर लिया, एहराम उतारा, शावर लिया, और फिर हमने क्या कर शावर वगैरह लिया और एहराम से हम बाहर हो गए, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। अब तवाफ़ ज़ियारत हो गई, अब दोबारा मीना जाना है। अब मीना जाने के लिए जो बेस्ट टाइम्स है वो है नमाज़ों के औकात के अलावा। नमाज़ों के बाद, नमाज़ों के औकात के बाद टैक्सी नहीं मिलती, यू कैन नॉट फाइंड अ टैक्सी। सेकेंड थिंग, ट्रैफिक विल बी एट इट्स पीक। जो डिस्टेंस बिटवीन मक्का टू मीना इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 minutes by taxi. On that day it will take you 2 hours and 20 minutes and you may have to walk. टैक्सी आपको अजीज़िया तक ही लेके जाएगी,
इसके बाद आपने फिर वॉक करके जाना है आगे अपने खेमे में। आप कपड़े वगैरह चेंज कर लें, एक आधी जोड़ी, और उसमें से एहराम सारे निकल जाएंगे और एक पेयर ऑफ क्लोथ्स इसमें आ जाएंगे। यू रिप्लेस एवरीथिंग एंड यू पुट अ पेयर ऑफ क्लोथ्स इनसाइड एंड यू टेक दिस विथ यू। ठीक है, अब जाके मीना में आप आराम करेंगे। अब दूसरे दिन की जो कंकरी है वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद है, उसका टाइम शुरू होता है ज़ोहर की नमाज़ के बाद। तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद अभी लास्ट ईयर तो ऐसा था कि उन्होंने नंबर लगाए थे, आपके मोहल्ले ने गेट बंद कर दिए थे, यू विल नॉट लेट यू गो आउट अंटिल योर टाइम इज़ ड्यू। टाइम होता था इस फॉर एग्जाम्पल दिस खेमा इज़ अलाउड टू डू योर कंकरी एट 3 o'clock, 3 बजे गेट खोल दिया उन्होंने, यू कैन गो आउट। ठीक है, ऐसा भी हुआ है, हमने ऐसा भी सुना है। देन यू गो टूवर्ड जमरात, अब तीनों जमरात को कंकरी मारनी है। ठीक है, रफ़ीकुल हरमैन उसका तरीका लिखा हुआ है, तीनों जमरात खुले होंगे 1 by 1 7 7 7। अब घूम के दोबारा आपने वापस मीना आना है, रास्ते बने हुए होंगे, आपको घुमा के दोबारा आपके खेमे में जाना है। यू गो देयर एंड रिलैक्स, नमाज़ों की पाबंदी करें, ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करें, दुआएं करें, इबादत करें। दुआओं की कबूलियत का वक्त है ये, दुआओं की कबूलियत की जगह है ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तीसरा दिन, इस दिन भी ज़ोहर की नमाज के बाद कंकरी मारने का वक्त है। तो आप फिर मीना से निकलेंगे, कंकरी मारेंगे। अब आप दोबारा नहीं जाएंगे, अब आप अपने होटल पे चले जाएंगे। याद रहे ये 3 दिन ट्रैफिक का आलम ये होता है कि गाड़ियाँ चलती नहीं है। वॉकिंग आप पहले पहुँच जाओगे, गाड़ी में बाद में पहुँचोगे। 2.5 3 घंटे की ट्रैफिक होती है, और टैक्सीज़ की और बसेस की एक लिमिट होती है, इससे आगे वो जाती नहीं है। यू हैव टू वॉक, तो वॉकिंग की आदत बना लें। ठीक है, और मेक श्योर करें कि आपकी वॉकिंग की आदत हो और कंफर्टेबल चप्पल भी हो। अब आपके 5 दिन हज के पूरे हो गए। अब आपने होटल में आना है, आपका फ़ौरन हज के आपको 2-4 दिन, 5-7 दिन, 10 दिन जो भी आपका पैकेज है आपको मक्का में रखेंगे। इसमें तवाफ़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करना है। अगर अब उम्रा करना चाहते हैं आप, अब उम्रा कर लें। ठीक है, अब उम्रा करना चाहते हैं, अब उम्रा कर लें। अब हमारे जो मेन हज के अरकान है वो सारे पूरे हो गए। रफ़ीकुल हर मैंने बहुत सारी चीज़ मसाइल जो है मैंने सारे स्किप कर दिए। मैंने आपको सिर्फ ट्रिक्स ऑफ ट्रेड बताया है। 45 मिनट्स में सारे मसाइल नहीं बता सकते, इसीलिए रफ़ीकुल हरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ़ीकुल हरमैन की एंड में क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एंड दे हैव द आंसर्स, यू नीड टू रीड दोस। उसमें बहुत सारे जो मसाइल हैं जो आपको आएंगे उसके ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए हैं। ये आया तो ये करना होगा, ये आया तो ये करना होगा, ये आया तो ये करना होगा। ठीक है, दूसरा, अब्दुल हबीब भाई की जो हज ट्रेनिंग सेशंस की वीडियोस हैं 2.5 घंटे की हैं, इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में ले लें। ये बहुत ज़रूरी है आपको। ये आपको उस पर उधर इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट वीक होता है। ये आपके फ़ोन में सेव होगी ना, या dawatislamia.net से आप उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये आप अपने हमेशा अपने फ़ोन में रखें, ये आपकी हेल्प करेगा। जब मीना में बैठे हैं, नहीं पढ़ने का दिल कर रहा है, कोई बात नहीं, आप हेडफोन लगा लें, ब्लूटूथ हेडफोन्स ले लें, हेडफोन लगा लें और फिर वो पूरा हज तरबियती सेशन सुने आप। अच्छा, कुछ कलाम है, ये कलाम होना बहुत ज़रूरी है। जो नात ख़्वाना को पसंद हो, dawatislamia.net से जो आपको कलाम पसंद हो, ये कलाम डाउनलोड कर लें, क्योंकि हर वक्त इल्म दीन हासिल करें हम, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वैरायटी के लिए, एंथुजियाज़म के लिए आपने कलाम भी रखने, कम से कम 30-40 कलाम। अभी बस में बैठे हैं, 2 घंटे का रास्ता है, व्हाट विल यू डू, हाउ मच कैन यू स्लीप, पुट योर हेडफोन्स ऑन, लिसन टू सम कलाम। आफ्टर 20-30 minutes, okay, I've had enough of kalam, no problems, listen to some अब्दुल हबीब भाई वीडियोस। इसके बाद फिर कलाम, इसके बाद बस थक गया, मेरे कान दुख रहे, नो प्रॉब्लम, तस्बीह। अच्छा, डिजिटल काउंटर, ये आपका फ्रेंड है। यहाँ से घर से निकलने के साथ दिस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ये कम से कम आधा दर्जन लेके जाना साथ में, ये वहाँ भी मिलते हैं, पर ये अच्छी क्वालिटी वाला जो आपको अच्छा लगता हो। इसमें डिजिटल भी आता है, मुझे ये पसंद है, मैं ये इसमें छोटा वाला भी आता है एक। ये कम से कम ½ डज़न होने चाहिए। टूट गया, गिर गया, भूल गए, हम इसको दोबारा दूसरे से रिप्लेस कर लेंगे। हमारी ये बैग में भी कम से कम 2 ऐसे होने चाहिए। ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये हमेशा ये उंगली में, फिंगर में होना ही चाहिए। यहाँ से निकले तो होना चाहिए, जब घर में आए ना, अब किसी से मुसाफा करें तो ये हटा के मुसाफा करना पड़े, इतना आदत होनी चाहिए इसकी। हम इतने सारे पैसे खर्चे करके हम अल्लाह की इबादत करने ही जा रहे हैं,
ये तस्बीह अल्लाह के ज़िक्र करने में हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि अगर ये फिंगर में होगी तो हमें याद होगा कि हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है, दुरूद पाक की कसरत करनी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। ठीक है, अब फिर आपको मदीना मुनव्वरा ले जाएंगे। अगर मदीना मुनव्वरा पैकेज में बाद में है तो बाद में, अगर पहले है तो आप मदीना मुनव्वरा हो के आए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो है जो मशवरे दे देता हूँ मैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर हम अज़ान ईशा भी होगी। ठंडा पानी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठंडा पानी नहीं पीना है। सारी ड्रिंक्स, आलीशान फूड मिलता है, लेट मी टेल यू दिस, आई विल अग्री, ब्यूटीफुल ड्रिंक्स, ब्यूटीफुल चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं, ये सब हमने हज के बाद खानी है। हज से पहले कुछ नहीं खाना है। मीना के 5 दिन और मीना से पहले ना ही ठंडा जमजम पीना है, ना ही कोई आइसक्रीम खानी है, ना ही कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, ना ही कोई चीज़ ठंडी पीनी है। ये कुर्बानी अभी दे दोगे मेरे को, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आप उधर याद करोगे। इसके बाद अगर आपने ठंडा पिया तो आप बीमार भी होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, थका हुआ होता है बंदा, बॉडी पूरी थक जाती है। ठीक है, बॉडी पेन भी होता है, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हो तो एक छोटी सी पेन किलर भी ले लें आप, बिकॉज यू विल बी टायर्ड। मेडिसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ की मेडिसिन। ग्लासेस, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ग्लासेस ये कम से कम 3 स्पेयर में होने चाहिए। मैंने लोगों के ग्लासेस गिरते हुए देखा है। एहराम, ये हज की बैग में भी ग्लासेस होने चाहिए। ठीक है, टूथ ब्रशेस होने चाहिए, एक बैग में हो, एक अपने पास रूम में हो, ये भी होना चाहिए। लगेज जब कैरी करो ना आप, तो कोशिश करो आपके एयरलाइन का जितना अलाउंस हो ना, उससे 50% लगेज आप कैरी करो यहाँ से। अगर 35 किलोज़ का लगेज है आपका और 7 किलोज़ हैंड कैरी, तो 7 किलोज़ हैंड कैरी तो ऑलमोस्ट भर जाएगा इससे। ठीक है, आपका जो लगेज अलाउंस है ना 35 किलोज़ पर, आपने कैरी करना है 17 किलोज़ मैक्सिमम। वाई? बिकॉज आप शॉपिंग करोगे उधर से, दोबारा शॉपिंग करोगे, खजूर खरीदोगे तो लाओगे कैसा जब लगेज ही नहीं है? तो आप 30 किलो ले गए हैं तो वापस कैसा लाओगे? फिर सामान फेंकना पड़ता है। ठीक है, या तो फिर आप खजूर नहीं ला सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। पासपोर्ट हमेशा अपने पास ही रखना है, किसी को हैंड ओवर नहीं करना है। नुसुक कार्ड हमेशा अपने पास होना चाहिए। अब इंशाअल्लाह मैं शॉर्ट में, मेरी वीडियोस वगैरह भी है कि जिसमें मैंने एहराम पहनने को सिखाया है, पर मैं आपको एहतियातन अभी शॉर्ट में एहराम भी बांधने को सिखा देता हूँ। अब मैं जो सिखाता हूँ ना, इससे इंशाअल्लाह आपको जो डर होता है ना कि एहराम उतर जाएगा मेरा, ये नहीं उतरेगा। ठीक है, ये टॉवल का है, ये मेरी साइज़ का है, मैंने पहले ही कर लिया, इसको पहले ही वॉश कर लिया था। अब इसको पहनेंगे कैसा? अच्छा, ये जो है ना पहनने का तरीका, ये अब्दुल हबीब भाई ने मदनी चैनल की वीडियो पे बहुत अच्छे से बताया है। ये इंशाअल्लाह आपको वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये कैसा पहनेंगे? ये देखो, ये एहराम मैंने बांधा। ठीक है, देखो अब ये मेरे पैर का नहीं होगा, क्योंकि ये पैर के निशान है। ठीक है, ये एहराम सही तरीके। ठीक है, अब देखो ये ऐसा ले लिया आपने। नॉर्मली हम इसको यूं मैच करते हैं, लेकिन एहराम की हालत में इधर इसके लिए ऐसा मैच नहीं करना है। ये जो सेकंड पल्लू है, जो सेकंड लीफ है, ये इसका शॉर्ट होना चाहिए। ये क्यों शॉर्ट होना चाहिए मैं बताता हूँ अभी, इंशाल्लाह अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये आगे जो पीछे वाला है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब हाथ रखोगे यूं और इसको टाइट करोगे। अब इसको यूं, ठीक है, यूं हाथ रखोगे यूं। अब ये हो गया। अब इसको घुमा दोगे। अब ये इट्स सेल्फ बहुत टाइट है, ये बैठ गया है। अब इसका एडवांटेज बताता हूँ आपको। जब पैर खोलोगे ना तो मेरा सित्र कभी नहीं खुलेगा। याद रहे, एहराम में देयर इज नो अंडरगारमेंट्स। ओके, देयर इज नथिंग। कफन में और एहराम में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि कफन मुर्दे को पहनाते हैं, एहराम जिंदा पहनता है। इतना ही फ़र्क है, सब उतार देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। अब इसमें आपका सितर कभी नहीं खुलेगा। सितर तो इसके अंदर है, ये कभी नहीं खुलेगा। आप चलोगे ना तो ये पैर कभी आपके नेकेड बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पैर 2 लीफ के अंदर है। अब मेरा जो नया बेल्ट मैंने बताया आपको, अच्छा ये बेल्ट भी उधर मिलता है। ये आपको सऊदी में भी मिलेगा, ये आपको इधर भी मिलेगा, ये अमेज़ॉन पे भी मिलेगा, जहां चाहिए वहां मिलेगा ये। ठीक है, अब ये फिट है पहले से ही मेरी साइज का। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको बांध लूंगा। अभी थोड़ा सा लूज होना चाहिए। ये देखो लूज है ये। क्यों? मैं बताता हूं। खुलने के बाद ये जो लीफ है ये इसके अंदर जाके फिर टक होगी, ये बेल्ट के अंदर।
अब क्यों ऐसा ये भी बताता हूं मैं आपको। खुदा ना खास्ता अगर ये बक्कल खुल गया, जो कि मैं अभी खोल देता हूं, पहले तो खुलेगा नहीं, अगर खुल गया, अब ये खुल गया है तो ये लूज हो गया है, अब लूज हो जाएगा तो ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये टक किया हुआ है, इसमें ग्रिप है। अब ये लूज होगा, मेरे को पता चल जाएगा, मैं फौरन हाथ रख दूंगा, आई हैव अ सेफ्टी। ठीक है, अगर ये खुल गया, जो भी खुल गया है अभी भी एहराम खुलेगा नहीं, एहराम टक किया हुआ है और बकल उसके अंदर है, तो बकल कपड़े के अंदर फंसा हुआ है। अब क्या करोगे आप, पकड़ लोगे इसको, पकड़ के एक कोने में चले जाओ, एक कोने में जाने के बाद इसको निकालोगे, कैसे ऐसे एहराम पकड़ के रखोगे, ये देखो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अभी जगह नहीं है, मैं एकदम बीच में हूं, सबके सामने हूं, ये जगह नहीं है एहराम चेंज करने की, नो प्रॉब्लम। इसको पकड़ के रखा है आपने, दोबारा लॉक कर दे, दोबारा बंद कर ले, फिर आप चले जाएं, थोड़ा सा अलग हो जाए, इसके बाद एहराम उतारे और दोबारा सेट कर लें इसको। ठीक है, ये डबल ट्रिपल सेफ्टी लॉक। अब ऊपर का ये सब मैंने आपको बताया, आई प्रिफर क्लॉथ, यू कैन वेयर वॉट एवर यू विश, हाउ एवर यू विश, वाइसा वर्सा और वन साइज ओनली। अब मैं इसको, ये देखें, ये मेरे साइज से बड़ा है, ये मैंने स्पेशली कटवाया है। मेरी जो इसमें जो एहराम था, मुझे याद है ये इतना शॉर्ट था, ये मैंने एक्स्ट्रा इतना करवाया है। क्यों? मेरी बॉडी से, पहले तो आप बॉडी में इसको फिट कर लोगे, इसके बाद ये जब पहनोगे तो ये ऐसा और ये ऐसा। ये नॉर्मली लोगों का जब टाइट होता है ना, तो आप हाथ ऊपर करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये लीफ इसको लिया और यहाँ बांधा, यहाँ टक कर दिया, ठीक है, और ये लीफ इसको लेके यहां टक कर दिया। अब ये बन गया शर्ट की मिसल। मेरे हाथ खुले हैं, नमाज के लिए हाथ, इसके लिए हाथ, रुकू सुजूद के लिए हाथ, कोई चीज़ कैरी करने के लिए हाथ। अब मेरे हाथ बिल्कुल खुले हैं, थोड़ा टाइट लगता है, कोई बात नहीं, पीछे से उसको आप थोड़ा सा सरका दोगे तो ये लूज हो जाएगा। देखिए, नमाज में जब आप रुकू करोगे और सुजूद करोगे तो लोगों के पल्लू गिर जाते हैं, ये गिर जाएगा, लोगों के यूं होगा ना, एक तादाद होगी जो यूं रख के आएगी। ठीक है, अब आप रुकू में जाओगे ना तो ये सबसे पहले नीचे गिरेगा, फिर आप रुकू में ही उसको घुमाओगे, इसको घुमाओगे तो किसी और को भी लगेगा। ये सिस्टम में ऐसा होता है, जब टक होता है ये, तो ये रुकू सुजूद में कहीं नहीं गिरता। आपका शर्ट जैसा होगा, आपका गला जो है ना, कईयों के गले खुले होते हैं, इसमें इंशाल्लाह से गला जो है ना, ये गला भी पैक रहेगा। ठीक है, अब इसको यूं पहन लें या यूं पहन लें, जैसा आपको आसानी हो। और जब तवाफ कर रहे हो तो आपका हाथ खुला होना चाहिए, कंधा खुला होना चाहिए, तभी आप इसको भी जैसा आपको आसानी हो वैसा पहन लें आप। ठीक है, सारा सामान इसमें होना चाहिए, बेल्ट में कुछ भी नहीं रखना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नमाजों में आसानी होगी। दूसरा एक और चीज़ जो मैं लाया नहीं, मेरे को अभी याद आया, वो है पेट्रोलियम जेली, नॉन परफ्यूम्ड पेट्रोलियम जेली। कोल्स और वुलीस का जो ब्रांड है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, इनका डब्बा मिलता है $3 का, ये पूरा डब्बा ले जाना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माशाल्लाह बहुत अच्छी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके दिली सुकून का खजाना है, समझ लें आप। ये जो है ना, ये जिसको हम अपना इनर थाइज बोलते हैं, ये घस जाएगी, बाल तोड़ोंगे और ये घस जाएगी। ठीक है, घस जाएगी तो छिल जाएगी तो ब्लीडिंग होगी और फोड़ियाँ हो जाएगी। मैंने लोगों ने बताया है कि भर गया था पूरा ये पिंपल से, और इसके बाद उतनी तकलीफ होती है, इतनी ब्लीडिंग होती है उसमें से। व्हाट यू नीड टू डू एवरी टाइम यू वेयर एन एहराम, अच्छा ये लगेज में अलाउड नहीं है, ये लगेज में निकाल लेंगे, सॉरी हैंड कैरी में। तो ये आपने जब प्लेन में बैठोगे तभी इतना इशू नहीं, इतनी वॉकिंग करोगे नहीं आप वॉकिंग करोगे मक्का में। व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी टाइम यू वेयर योर एहराम, यू हैव टू अप्लाई अ थिक लेयर, ग्रीसी हो जाना चाहिए अंदर पूरा। इससे ये होगा कि जब आप चलोगे फ्रिक्शन नहीं होगी। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस। मैंने जब पहली बार हज किया था तो छिल गया था पूरा, उसके बाद से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे हज वगैरह जितनी भी हुई कभी नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत से। वाई? एवरी टाइम, दिन में 3 बार, अगर मैं 5 दिन मीना में हूँ, दिन में 3 बार। हमने 21 किलोमीटर्स भी वॉक किए एक दिन के अंदर। मेरे फ़ोन में एक बार ऐप, जो पता है सबके फ़ोन में हेल्थ ऐप होता है, उसको पता चलता है कि हाउ मेनी स्टेप्स हैव यू वॉक्ड। वन डे व्हेन मी एंड माय ब्रदर सॉ
we had walked 21 kilometers, 35,000 steps on the day of Arafah, on the day of Eid. इतनी वॉकिंग की थी हमने, कभी भी हमें चलने में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वही वैसलीन आप अपनी एड़ियों पे लगाएंगे। हमें ऑस्ट्रेलियंस को चप्पल पहनने की आदत नहीं है, और वहाँ पे आप जूते लेके ही नहीं जाओगे, समझ गए आप? हमें चप्पल पहनने की आदत नहीं है, और हम वहाँ जूते लेके ही नहीं जाएंगे, तो हम 15-20 दिन चप्पल में होंगे तो एड़ियाँ फट जाती है। तो एड़ियाँ फट जाती है तो रात को सोते वक्त आप यही वैसलीन को अपने एड़ियों पे लगा लें। इसीलिए पूरा डब्बा ले जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शर्त ये है दिस शुड बी नॉन परफ्यूम्ड। रिसेंटली आई वेंट टू अ केमिस्ट, they had, but it was perfumed. You can't use that in ihram. ihram से पहले लगा सकते हो, ihram की हालत में नहीं लगा सकते, ठीक है? So it has to be non perfume, plain petroleum jelly. ये बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाद नमाज ईशा मुख्तसर सा महफिल मदीना कर लेते हैं। अब माशाअल्लाह हम यादों में हम मक्का जाके आ गए, तवाफ़ भी किया, ज़ियारत भी की, हज भी की। जी, क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह ईशा के बाद ले लेता हूँ मैं आपके, ठीक है? अब फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अभी नमाज का वक्त हो गया है, 10 मिनट है। इंशाअल्लाह जमात को जिनका वज़ू नहीं है वो वज़ू कर लें, और फिर इंशाअल्लाह जो भी क्वेश्चंस हो आपके, आप आके पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ लें, रज़ा भाई से भी पूछ लें, कोई इशू नहीं है। और इंशाअल्लाह कुछ भी हो तो हमें दुआओं में भी याद रखिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल महफिल मदीना के बाद या नमाज के बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनका वज़ू नहीं हो वज़ू कर लें, बाकी सारे अज़ान का इंतज़ार करें।